Okay, we have already discussed about these two reconciliation. Yes. प्रोजेक्टर ऑन नहीं है? बाहर से देखो। हाँ, बाहर से स्विच ऑफ है। लैपटॉप में भी करंट नहीं आ रहा है इसका। Okay. Okay. So now start with the reconciliation 3. Reconciliation 3 is 2n plus 1 pnx is equal to p dash n plus 1 x minus pn minus 1 x. Okay. We have to show that n plus 1 pn 2n plus 1 pnx is equal to pn plus 1 dash pn minus 1 x. It is our third reconciliation. So now we will prove this reconciliation, how we will prove. So to prove this reconciliation, we will use the first reconciliation, that was n plus 1 p n plus 1 is equal to क्या था हमारे पास 2n plus 1 pn x minus n pn minus 1 n plus 1 2n plus 1 2 n plus 1 x pn minus np n minus 1. I think I am correct. Yes. So that was the reconciliation 1. We will use this reconciliation to obtain third reconciliation. So say that it is equation number 1. Now differentiating this equation 1 with respect to x both sides. Differentiating 1 with respect to x both sides. Okay. So it will give us n plus 1 p n plus 1 dash is equal to 2n plus 1 pn plus 2n plus 1 x pn dash minus n pn minus 1 x. Okay. Now here we will use reconciliation second. What was the reconciliation second? N pn x is equal to x time pn dash minus pn dash. So it is reconciliation 2. Use this reconciliation. Say that it is this is 2. Now using this 2,
and substitute the value of x p n dash with the help of this equation reconciliation 2. So we can write with the help of this reconciliation 2, x p n dash can be write as npn plus pn minus 1. Okay, so now substituting x pn dash in this expression, npn plus pn minus 1 dash. Okay, so this will give us, when we are substituting, say that it is 3 and it is star relation. Okay, so substituting xpn dash from this equation 3 into this star equation, so it will give us n plus 1 pn plus 1 dash 2n plus 1 pn plus 2n plus 1 npn plus pn minus 1 dash minus npn minus 1 dash. Now solving these two relations. Now solving this, simplifying this relation. So this will give us n plus 1 pn plus 1 dash is equal to 2n plus 1 pn plus n 2n plus 1 pn plus 2n plus 1 pn minus 1 minus np n minus 1. सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, pn वाले एक साथ कर लीजिए. अच्छा, थर्ड में दोनों में हमें pn डैश चाहिए ना, pn plus 1 and pn minus 1. Okay, now solve these two. ओके, सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा बताइए. आफ्टर सिंप्लीफाइंग व्हाट वी विल गेट, सिंप्लीफाई करिए इसको. n प्लस 1 कॉमन आ जाएगा. हाँ, चलिए बताइए क्या आएगा. n प्लस 1 p डैश n प्लस 1, हाँ 2n, हाँ n प्लस 1 pn प्लस p dash n minus 1. Okay, so n plus 1 is common both sides, so cancel out this factor. N plus 1, this will give you n plus 1 dash 2n plus 1 plus dash 2n plus 1. pn can also be write as pn plus 1 dash minus pn minus 1. यही था हमारा reconciliation third. That was our reconciliation third. So by using reconciliation 1 and 2, we can prove the reconciliation 3. Okay. So now next is reconciliation 4. Okay, fourth reconciliation is pn dash x pn minus 1 minus n pn 1 x xn. Okay, so fourth is x pn dash is equal to pn dash x pn minus 1
dash minus n Pn minus 1. This is reconciliation 4. So again, we will prove this reconciliation with the help of reconciliation 1 and 2. So first of all, we will use the first reconciliation, that was 2n plus 1 Pn plus 1. Pn plus 1 is equal to 2n plus 1 x Pn minus n Pn minus 1. अच्छा हाँ सॉरी n minus 1. This is our reconciliation 1. Again saying that it is equation 1. So same way differentiating again it with respect to x. Differentiating it again with respect to x. This will give us p dash then 2n plus 1 Pn plus 2n plus 1 x Pn dash minus n Pn minus 1 dash. Okay. This can also be written as 2n plus 1 Pn plus n plus 1 x Pn dash plus nx Pn dash n Pn minus 1. लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और देखिए ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, सेकंड रेक्टेंगुलर से इसको क्या लिख सकते हैं, लास्ट टू टर्म्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड रेक्टेंगुलेशन, एन पी एन एक्स, यस एक सेकेंड, एन स्क्वायर बी एन. सो एक मिनट के लिए इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्या आ रहा है, n प्लस 1 पी एन डैश n प्लस 1, n प्लस 1 पी एन डैश n प्लस 1 इक्वल टू 2n प्लस पी एन, 2n प्लस 1 पी एन प्लस n प्लस 1 x पी एन डैश, यस एक्स पी एन डैश, और यहाँ पे n स्क्वायर पी एन प्लस n स्क्वायर पी एन. ये कहाँ से आया, n पी एन आया विद द हेल्प ऑफ सेकेंड रेक्टेंगुलेशन. ओके, नाउ solving these two. So this will give you n square 2n plus 1 Pn plus n plus 1 x Pn dash n plus 1 Pn plus 1 dash. This can be written as n plus 1 whole square. Again n plus 1 is common both sides. This factor is common on the both sides. So cancelling out this term, this will give us n plus 1 Pn plus x Pn dash. अच्छा हमें प्रूफ क्या करना था, व्हाट वी वांट टू प्रूफ, Pn डैश की वैल्यू लिखना चाहते थे. ओके, यहां से हमारे पास Pn डैश की वैल्यू लिखनी है, हमारे पास आ रही है Pn डैश n plus 1 की. So for finding the Pn dash we can replace this n plus 1 by n. ठीक है, replacing n plus 1 by n in above expression. ठीक है, so this will give you Pn dash n Pn and this one is n minus 1 plus x Pn1 x. यही है हमारा रेकन्सिलेशन. ओके, ये नहीं है, साइन में कुछ चेंज है क्या,
माइनस में क्या दिक्कत आ गई? एक सेकेंड। सेकेंड था NPN, सॉरी, NPN x PN डैश माइनस PN माइनस 1। हमारे में माइनस नहीं आ रहा साइन क्या? एक मिनट। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। एक एक रेफरेंसलेशन एक मिनट लिखने दीजिएगा। फोर्थ इज PN dash x PN minus 1 and PN minus 1 x. X PN and PN minus 1 x. Okay. And second reference relation था हमारे पास NPN x PN dash PN minus 1 x. Okay. चलिए चेक कर लेते हैं इसको फिर से। We have to prove Pn dash x Pn minus 1 and Pn minus 1. We are using n plus 1 Pn plus 1 2n plus 1 x Pn minus nPn. Okay. Now differentiating it with respect to x, this will give you n plus 1 P dash n plus 1 2n plus 1 Pn 2n plus 1 x Pn dash minus nPn1. Okay. And this can be written as n plus 1 x Pn dash plus n x Pn dash n minus 1. Okay. And with the help of second reconciliation, this can be write as NPN. Correct? N plus 1 Pn dash 2n plus 1 x लिखना भूल गए क्या यहाँ पे? नहीं, 2n plus 1 Pn ही रहेगा ये ना, Pn n plus 1 Pn dash, और यहाँ पे जो हमारा n स्क्वायर आया था इसको ये लिख लिया हमने, n plus 1 कैंसिल हो गया, P dash n plus 1 Pn plus x Pn dash. सही तो है? सही है ना? सही है, करेक्ट है। इसको बस हमने ये इसको यहाँ पे लिखना है, NPN minus 1 इक्वल टू PN डैश माइनस XPN minus 1। करेक्ट तो है? एक अच्छा, एक माइनस हमारा आ रहा है इधर उधर।
किसको रिप्लेस करना चाहिए था यहाँ पे मैं? एक सेकेंड चेक करिएगा फिर से। फर्स्ट वाले रिलेशन को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके था n+2n+1 पी एन एक्स, ओके एक्स पी एन एक्स, एन स्क्वायर पी एन एक्स लिख लिया, एन स्क्वायर पी एन एक्स को हमने इसके साथ में लिख लिया, सो n2 पी एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्लाइड पे ही माइनस साइन गलत लिखा है ना? हाँ, हमारा प्रूफ सही है, स्लाइड पे ये जो माइनस साइन लिखा है वो गलत है, ये प्लस ही होगा, ठीक है, इट विल बी प्लस। 1 सेकेंड, मिस्टेक हमारी यहाँ पे है, इट शुड बी 1, दिस शुड बी 1, ओके। ओके, सो दैट reconciliation is okay, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है ये केवल, ओके। सो नेक्स्ट इज reconciliation 5. Reconciliation 5. Hello, ma'am. We will prove this reconciliation 5 with the help of reconciliation 2 and 4. तो इसको हम यहीं पे बता दे रहे हैं, बार बार इधर उधर लिखने में हमें दिक्कत हो रही है ना? क्या है reconciliation? x p n x minus p n x p n dash minus p n minus 1 dash x is equal to n p n, ठीक है, and this can also be write as fourth reconciliation is p n dash x minus x p n minus 1 dash is equal to n p n minus 1 x। देखिए इसके हिसाब से ये करेक्ट है, ठीक है, ये प्लस ही साइन होगा, यहाँ पे भी यूज हुआ है। देन क्या करेंगे, हमें क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डैश एक्स। सो ये जो इक्वेशन नंबर हमने फिफ्थ लिखा है और 6, so multiplying in this fifth both side with x and then subtracting after multiplying equation fifth with x, subtracting it from equation number 6, so this will give you 1 minus x square। देखिए यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर पी एन डैश आ जाएगा, तो माइनस करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डैश इक्वल टू हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं अलग से, तो इन दिस वे वी कैन प्रूव द reconciliation fifth also. Next and most important property is orthogonal property. So orthogonal property of Legendre polynomial says that if we are integrating Legendre polynomial of order m and n with respect to x over the range -1 to 1, so its value will be 0 if m and n are not equal, okay. So its value will be, that integral will be 0 and its value will be 2 upon 2n plus 1 when m is equal to n. It is called the orthogonal property. यानी कि अगर डिफरेंट ऑर्डर के हमारे ऑर्थोगोनल लेजेंडर पॉलिनोमियल हैं तो उनको इंटीग्रेट करेंगे ओवर द होल रेंज -1 to 1, दिस विल गिव यू 0, ठीक है। तो केवल जो है ना हमारे पास जब m और n इक्वल होगा तब उस केस में हमें एक नॉन जीरो क्वांटिटी मिलेगी, दैट इज इक्वल टू 2 upon 2n plus 1, okay. So now we will see this property, orthogonal property of Legendre polynomial. Orthogonal property of Legendre polynomial. इस प्रॉपर्टी की वजह से ही हम अपने एप्लीकेशन पार्ट में लेजेंडर पॉलिनोमियल्स का बहुत यूज करते हैं। सो दिस प्रॉपर्टी सेज दैट pmx pnx dx its value is 0 if this m is not equal to n and its value is 2 upon 2n plus 1 if m is equal to n। इसको पहले प्रूफ करते हैं, ठीक है।
For suppose that here we are considering two Legendre equation of different order. Say one is 1 minus x square u double dash minus 2x u dash plus n plus 1 u is 0. It is Legendre differential equation of order n. ठीक है, n is here any integer. n यहाँ पे हमारे पास कोई भी इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर के केस में ही हमारा एक सोल्यूशन लेजेंडर पॉलिनोमियल होता है. ओके, एंड अनदर इज 1 minus x square v double dash minus 2x v dash plus m plus 1 v is 0. ये दूसरी इक्वेशन है हमारे पास. ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, n है, इसका ऑर्डर m. So you know that one of the solution of this Legendre polynomial must be Pnx. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन Pnx होगा एंड सॉल्यूशन ऑफ दिस Legendre polynomial is Pmx, जैसा हम जानते हैं. ठीक है, तो इसको एक नाम दे देते हैं, से दैट इट इज इक्वेशन 1 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, नाउ multiplying equation 1 by v both side and multiplying equation 2 by u both side. ठीक है, तो multiplying in equation 1 by both side by v and in equation 2 by u. multiply कर दीजिए. So this will give you 1 minus x square v into u double dash 2x v u dash n plus 1 uv 0. Okay, next is 1 minus x square u v double dash minus 2x u v dash plus m plus 1 uv 0. ओके, अब इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. नाउ सब्ट्रैक्टिंग दीज टू इक्वेशन. यस, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दीज टू इक्वेशन. सब्ट्रैक्टिंग, से दैट इट इज इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 कर दीजिए. इसको करिए, मुझे आंसर बताइएगा. सब्ट्रैक्ट करके आंसर बताइए क्या आएगा. एक सेकेंड. थ्री और 4 को डिफ्रेंशिएट करने के बाद सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3. थ्री को 4 से डिफरेंस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आएगा बताइए जल्दी से. 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में वी यू डबल डैश माइनस यू वी डबल डैश माइनस 2x और ब्रैकेट में वी यू डैश यू वी डैश देन प्लस यू वी इंटू n plus 1 minus m plus 1. ओके, इक्वल टू 0 ये आएगा. ओके, दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी राइट एज, इन दोनों पार्ट्स को क्या लिख सकते हो, डेरिवेटिव फॉर्म में लिख सकते हो.
1 माइनस एक्स स्क्वायर, यस मैम, यहाँ पे 1 1 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर को किया गया डिफरेंशिएट, माइनस 2x आ गया, ठीक है। v u डैश u v डैश, है ना। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, v u डबल डैश प्लस v डैश u डैश माइनस u v डबल डैश माइनस u डैश v डैश, तो u डैश v डैश कैंसिल हो गया, सो दिस कैन बी राइट एज d by dx ऑफ दिस, लिख सकते हैं ना, इन दोनों को कंबाइंडली लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर v u डैश माइनस u v डैश, लिख सकते हैं ना। ओके, एंड नेक्स्ट इज u v n plus 1 minus m plus 1 0. Okay, so this can be write as d by dx, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर v u डैश u v डैश, इसको सिंप्लीफाई करिए ब्रैकेट वाले को, ब्रैकेट में देखिए ये लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस n माइनस m स्क्वायर प्लस n, तो n स्क्वायर माइनस m को लिख सकते हैं n माइनस m इंटू n प्लस 1, और n माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल गिव यू n माइनस m m plus n plus 1 into uv is equal to 0. Okay, and this can also be write as d by dx 1 minus x square v u dash u v dash is equal to m minus n m plus n plus 1 uv, लिख सकते हैं। अब आपने पता है इसको क्या लिख सकते हैं, बोथ साइड ले जाइए डिफरेंशिएट करके, तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर v u डैश u v डैश m माइनस n m प्लस n प्लस 1 u v dx, लिख सकते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x ओवर द इंटरवल -1 to 1। अब ये u और v क्या है, u और v क्या होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, दे मे बी अ लेजेंडर पॉलिनोमियल, हम यहाँ ले सकते हैं क्योंकि इसका वन ऑफ द सॉल्यूशन इज pnx and pmx, so we can take here u is equal to pnx and v is equal to pmx because they are the solution of differential equation 1 and 2. So here we can substitute in place of u and v pmx and pnx. Okay, वो हम लास्ट में ख्याल रख देंगे, ठीक। अभी हम क्या देखते हैं, यहां से इसकी वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, इंटीग्रेट करेंगे सॉरी, सो दिस विल गिव अस इंटीग्रल -1 to 1 1 minus x square v u dash minus u v dash is equal to m minus n m plus n plus 1 इंटीग्रल -1 to 1 u v dx, यही होगा हमारा इंटीग्रल, ठीक है। अब इसको देखिए, ये डायरेक्टली हमारा क्या है, टोटल डेरिवेटिव है इस पूरे फंक्शन का, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही फंक्शन आ जाएगा हमारे पास, सो वी विल गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर v u dash minus u v dash and then substituting the limit x -1 and 1, lower limit is -1 and upper limit is 1, and in place of this uv m minus n m plus n plus 1 -1 to 1 pn and pm dx, यहाँ पे हमने u और v सब्स्टिट्यूट कर दिया, and you can see on the left hand side when you are substituting x is equal to 1, so term will be 0 due to this factor 1 minus x square. Again at the lower limit x is equal to -1 due to this factor, at the lower limit this function will be again 0, so left hand side is always 0 at the lower limit and upper limit. Okay, and this is m minus n m plus n
plus 1 integral minus 1 to 1 pm pn dx. Okay, and here we are considering the case when m is not equal to n. M is not equal to n, it means that m minus n is not equal to 0. So this factor is never 0 in the case when m is not equal to n. अब m और n की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो ये टर्म तो 0 होने नहीं है. m प्लस n जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये टर्म इज अगेन नॉट इक्वल टू 0. ये टर्म भी हमारा 0 नहीं होगा. सो दिस टर्म इज अगेन नॉट 0. पर इन तीनों टर्म्स में ये तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट क्या है? दिस इज 0. So it must, this expression will imply that this integral minus 1 to 1 pm pn dx must be 0. ये वैल्यू ट्रू कब होगी? Only at least one factor among these three must be 0. तो ये फैक्टर 0 हो नहीं सकता. m is not equal to 0. This factor is again not 0. It means that this integral of pm and pn from minus 1 to 1 must be 0. तो ये तो पहला केस प्रूव हो गया कि अगर m नॉट इक्वल टू n है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इंटीग्रल की? इट मस्ट बी 0. नाउ कम ऑन द सेकेंड पार्ट व्हेन m इज इक्वल टू n. ओके, सो वी विल कम ऑन द सेकेंड केस व्हेन m इज इक्वल टू n. सो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल pm and pn dx. इसी की वैल्यू निकालना चाहते हैं. अब आपने पता है कि m इज इक्वल टू n, तो इट मीन्स दैट इट मस्ट बी pn स्क्वायर dx. लिख सकते हैं, ठीक है. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ दिस pn विद द हेल्प ऑफ रॉड्रिक्स फॉर्मूला. ठीक है, सो रॉड्रिक्स फॉर्मूले से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2n फैक्टोरियल n होल स्क्वायर. ठीक है, माइनस 1 to 1 txn x स्क्वायर माइनस 1 टू पावर n स्क्वायर dx. लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट pnx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू पावर n फैक्टोरियल n इनटू nth डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 टू पावर n. ओके, तो वहां से हमने इसकी वैल्यू लिख दी. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स. ठीक है, और कितनी बार में निकलेगा इसको जरा से देख लेते हैं. 2 टू पावर n फैक्टोरियल n होल स्क्वायर. इसको अभी बार बार नहीं लिखेंगे, इसको कर लेते हैं अल्फा लिख लेते हैं, बार बार अल्फा लिखते चले जाएंगे. ठीक है, लेट अल्फा इज 2n n फैक्टोरियल स्क्वायर. ठीक है, बार बार नहीं लिखना चाहते, लास्ट में लिखेंगे. ओके, सो दिस टर्म inside this integral can also be write as dxn x square minus 1 to power n and dxn x square minus 1 to power n dx. We can write in this way. लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इसमें से एक को जो है ना फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए, दूसरे को सेकंड फंक्शन ले लीजिए और बाय पार्ट्स अप्लाई कर दीजिए. इंटीग्रेटिंग दिस टर्म बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट. ओके, सो फॉर सपोज दैट इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट टर्म और इसको हम सेकेंड टर्म ले लेते हैं. सो दिस विल गिव यू अल्फा. इसकी जगह पे हम अल्फा यूज कर रहे हैं. सो फर्स्ट टाइम क्या होगा? फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगा और ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट हो जाएगा वन टाइम. तो ये ऐसे ही रहेगा. तो इट मीन्स दैट डी एक्स एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू पावर n and this will give you n minus 1 dxn minus 1 x square minus 1 to power n and it's now substituting limit minus 1 to 1. ठीक है, नेक्स्ट इज माइनस इंटीग्रल माइनस 1 to 1. इसको क्या करेंगे? एक बार और डिफरेंशिएट हो जाएगा. दिस विल बी गिव यू n plus 1 dxn plus 1 x square minus 1 to power n and this will give you again dn minus 1 xn minus 1 x square minus 1 to power n into dx. यही होगा ना डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टर्म. ठीक है, अब यहां से देखिए इसमें जो भी आ रहा हो यहाँ पे ये टर्म देखिए, इसकी पावर n है और ये कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है? n माइनस 1 टाइम्स. तो इसके अंदर हमेशा हमारे पास एक फैक्टर आएगा x स्क्वायर माइनस 1. ये कंप्लीटली कभी कोई कांस्टेंट नहीं आएगा. फर्स्ट ब्रैकेट में जो भी लिखा है इसमें ऑलवेज जो भी टर्म होंगे उनमें हमेशा एक फैक्टर इन्वॉल्व होगा
एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन जब तक इन्वॉल्व रहेगा 1 और -1 पर इसकी वैल्यू 0 आनी। तो इसका मतलब कि ये ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म आया ये तो ऑलवेज भी 0 एट द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। बचा कितना, ये हमारे पास जो सेकेंड इंटीग्रल वाला पार्ट बचा। तो आफ्टर वन टाइम इंटीग्रेशन वी विल गेट अल्फा एंड माइनस साइन लिख लेते हैं, -1 to 1 n+1 dxn plus 1 x square minus 1 to power n minus 1 and derivative of again x square minus 1 to power n dx। ठीक है, एक बार और कर लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट n टाइम्स जो भी करना होगा वो कर लेंगे। ठीक है, तो अभी इसको वन टाइम मोर करें हम तो क्या होगा, दिस विल गिव यू माइनस अल्फा and again in the bracket dn plus 1 xn plus 1 x square minus 1, अगेन इसी को फर्स्ट टर्म इसको सेकेंड टर्म लेंगे तो वन टाइम और इंटीग्रेट होगा, ये हो जाएगा n minus 2 dx n minus 2 x square minus 1 to power n minus 1 to 1, फिर से ये टर्म जीरो ही होना है, देन माइनस इंटीग्रल -1 to 1 dn plus 2 dx n plus 2 x square minus 1 to power n, and this one is n minus 2 x n minus 2 x square minus 1 to power n dx. Okay, so this term will be 0, we will get minus and minus, यानी हम क्या लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर अल्फा। ठीक है, हम इसको प्लस कर सकते थे लेकिन हमें एक पैटर्न चाहिए तो इसलिए हमने इसको लिख लिया -1 स्क्वायर इंटू अल्फा, इंटीग्रल -1 to 1 dn plus 2 dx n plus 2 of the x square minus 1 to power n d n minus 2 dx n minus 2 x square minus 1 to power n dx। ओके, तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिला, -1 to power 2 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म अल्फा इंटीग्रल -1 to 1, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, n की जगह n plus 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, n minus 2 हो गया, यानी कि अगर हम n minus 2 टाइम्स और करें डिफरेंशिएट तो क्या होगा, यहाँ डिक्रीज होती जा रही है ना पावर, एक बार किया तो n minus 1 हो गया, दूसरी बार किया तो n minus 2 हो गया, तो n minus 2 बार और करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव टर्म नहीं आएगा। तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग n minus 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 to power n minus 2 इंटू -1 to power 2, 2 पहले से देखिए 1 बार करा तो हमारे पास कितना हो गया, -1 to power 1, सेकेंड टाइम -1 to power 2, और अभी n minus 2 टाइम्स और करने का मतलब क्या है, n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा -1 to power n, अल्फा कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रल -1 to 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n plus n 2n, यानी 2n dx 2n x स्क्वायर -1 to power n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल ये फंक्शन आ जाएगा, होगा ना, तो दिस विल गिव यू x स्क्वायर -1 to power n dx। ठीक, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए ये x स्क्वायर -1 to power n ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल है, x square minus 1 to power n is the polynomial of degree 2n, and again we are differentiating it 2n times. So whenever we are differentiating a polynomial to n, if we are considering a polynomial of degree 2n and differentiating that polynomial 2n times, so we will get a constant, and constant will be factorial 2n, होगा ना, so this will give you factorial 2n. So finally, we will get, after integrating n times -1 to power n alpha integral -1 to 1 factorial 2n and x square -1 to power n dx, यही होगा। Okay, now
here we want to substitute x is equal to sin थीटा अगर सब्स्टिट्यूट कर दे, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू साइन थीटा कर दीजिए, क्या मिलेगा? देखिए -1 to 1 2n फैक्टोरियल, दिस कैन बी राइट एज -1 to power n x 1 minus x square, 1 minus x square to power n लिख सकते हैं ना, एंड दिस विल गिव यू 2n अल्फा, ये कांस्टेंट टर्म भी बाहर लिख लेते हैं, 2n फैक्टोरियल -1 to 1, सॉरी अभी लिमिट चेंज होनी है हमें, अच्छा इवन फंक्शन है, इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स 0 to 1 कर दें, है ना, ये इवन फंक्शन आ रहा है ना 1 minus x स्क्वायर, सो 0 लोअर लिमिट हमने 0 कर दी, और ये क्या आ जाएगा π/2 एंड 1 minus sin स्क्वायर थीटा मीन्स cos स्क्वायर cos 2n थीटा, cos 2n थीटा, और dx क्या देगा आपका cos थीटा d थीटा, यहीं पे कर दे, ठीक है। गामा फंक्शन से इसकी वैल्यू बताइए, गामा फंक्शन में जानते हैं ना, इंटीग्रल 0 से π/2 साइन 2p + 1 थीटा इंटू कॉस 2q माइनस थीटा चलता है, सॉरी वहां पे चलता है 2p - 1 थीटा एंड कॉस 2q - 1 थीटा इक्वल टू गामा p इंटू गामा q डिवाइडेड बाय गामा p + q + 1, यही होता है ना। गामा फंक्शन में 0 साइन 2p - 1 थीटा cos 2q - 1 थीटा d थीटा इज इक्वल टू गामा p गामा q गामा p + q + 1, इसका यूज करके इसकी वैल्यू बताइए। साइन का टर्म यहाँ पे नहीं है, यानी कि साइन की पावर कितनी है 0, और साइन की पावर 0 का मतलब 2p - 1 इज 0, यानी p = 1/2, और यहाँ से q की वैल्यू कितनी होगी 2n + 1 = 2q - 1, so this will give you 2n + 2 divided by 2, यानी n + 1, q is n + 1 here, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और बताइए क्या वैल्यू है। टू इंटू अल्फा 2n फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करके वैल्यू बताओ क्या आएगी। गामा 1/2 गामा n + 1 डिवाइडेड बाय p + q + 1, कितना हुआ 2n + 2 + 1/2, यही हुआ ना। अच्छा हाँ n + 1 है, सॉरी, यानी ये लिख सकते हैं n + 5/2, ठीक है। अब n हमारे पास इंटीजर है, ये तो फैक्टोरियल n हो जाएगा, और n + 5/2 को क्या लिख सकते हैं, हमें ये 1/2 कैंसिल करना है, n भी तो है, n भी तो है ना, सॉल्व करो इसको, अल्फा 2n फैक्टोरियल n 1/2, इसको हमने तो फैक्टोरियल n लिख लिया है, एंड इसकी वैल्यू बताइए n + 5/2, n + 5/2 को क्या लिख सकते हैं हम
गामा अच्छा हाँ, एक फॉर्मूला है गामा एन इंटू गामा एन माइनस वन इक्वल टू पाई अपॉन साइन पाई बाई टू करके है ना, एन पाई बाई टू, वो बता रहे हो। डुप्लीकेशन रिलेशन क्या था? हाँ हाँ वो लिख सकते हैं, लेकिन उससे हमारे पास 3/2 ऐसे करके आएगा ना। हमें चाहते हैं कि ये हट जाए यहाँ से, 1/2 फैक्टोरियल फॉर्म में ही आ जाए, रिजल्ट आएगा फैक्टोरियल फॉर्म में। डुप्लीकेशन फॉर्मूला या ऐसा कुछ यूज करना पड़ेगा, इसको एक बार करिएगा, इसको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। एक सेकेंड हम देखते हैं स्लाइड पे क्या आ रहा है। आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डुप्लीकेशन फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गामा 1/2 टर्म का टर्म नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी कि वो टर्म कैंसिल होगा इस टर्म की वजह से। ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हो n+1 प्लस गामा 2 n प्लस 2n प्लस 5/2। नहीं, यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा डुप्लीकेशन फॉर्मूला, ठीक है, यूज द डुप्लीकेशन फॉर्मूला। डुप्लीकेशन फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो ये गामा वाले जो टर्म्स है वो कैंसिल होकर हमारे पास फैक्टोरियल 5 में आ जाएंगे। एग्जैक्टली मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, क्या होता है 2^2n-1। चलिए इसको हम आपको दे रहे हैं, इसको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है, इसकी केवल वैल्यू निकालिएगा इस गामा फंक्शन की, बस यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो जाएगी। कल की क्लास में फिर हम पूछेंगे, ओके। यस